Good morning, students. This is your first chapter of Civil Semester 5, and first topic is concrete as construction material. Cement, cement concrete is a product obtained artificially by hardening of mixtures of cement, binding materials, fine aggregates that is sand, coarse aggregate that is broken stones, gravels, etc., and water in a specified predetermined proportions. The materials are thoroughly mixed to form a workable mixture which can be modeled into different structures and non-structural components. Chemical reactions between cements and waters help in hardening of concrete. And next topic is requirement of good concretes, means वो कौन कौन सी ज़रूरत हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको एक अच्छा कंक्रीट्स होने के लिए ज़रूरी है. दी फर्स्ट वन इज़ दी एग्रीगेट्स. Fine coats must be clean and hard and durable. It should have good workability so that all operations can perform satisfactorily. It should be compact and dense. Next, it should be durable so that the weathering agencies have least effect on them. Water सीमेंट रेशो शुड बी एक्यूरेट. जो वाटर और सीमेंट का रेशो है वो एक्यूरेट होना चाहिए ताकि वो मिक्स सही हो सके. नेक्स्ट, कंक्रीट शुड बी इनफ वर्केबल टू फिल दी वर्क completely. The sixth one is the concrete should be enough workable to fill the work completely. And seventh point is concrete should form homogeneous mixtures. 8. It should be fire resistant. जैसे आपने देखा होगा अगर आग वगैरह लगती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर आपकी वायरिंग जो होती है या लकड़ी का होता है वो जलता है, लेकिन जो आपका सीमेंटेड है वो ब्लैक हो जाता है आग की वजह से, पर वो जलता नहीं. एंड नाइन्थ, इट शुड हैव मिनिमम श्रिंकेज. श्रिंकेज होना है श्रिंक, जैसे कपड़ा श्रिंक हो जाता है उसमें वो श्रिंक जो होनी चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए. द वाटर यूज्ड व्हाइल मिक्सिंग shall be free from organic materials. It should be imperables. Sufficient quantity of cement should be used to produce the required water, lightness and strength. And last point, it should be economical. ये थे आपके जो पॉइंट्स थे आपके जो आपने पढ़े हैं अभी. रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंक्रीट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. एंड दी नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ आरसीसी, या फिर आप बोलते हो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. इसमें आपने सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि आरसीसी है क्या चीज़ है. तो आप सबसे पहले यही देखोगे, आप इसको बुक से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, नेट से भी आप चेक कर देख सकते हो. ठीक है जी, जैसे आपको सही लगे, आपको समझ में आए, आप उसको पढ़ सकते हो. नोट्स भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं. द कंसेप्ट ऑफ आरसीसी. द राउंड स्टील बार आर यूज्ड to reinforce the plain cement concrete so as to make it more strong in tension as well as in comparisons are known as reinforcement. After calculation the load and stress, the reinforcement is suitably designed and placed. It increases the strength of the concrete and also help in controlling the effect to shrinkage and temperature stress. The cement concrete reinforced with steel so is known as reinforcement cement concrete, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो आरसीसी. फाइनल एग्ज़ाम में अगर आरसीसी आता है तब भी आपको पता होना चाहिए
या फिर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीसी क्या है। तो ये जो आपका, उसके बाद दी यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज़ 25,000 एन मीटर स्क्वेयर्स और 25 किलो। जो 25,000 है, आप यहाँ पर इसको किलो में कन्वर्ट कर देते हो तो 25 के एन स्क्वेयर्स। लाइम कंक्रीट इज नेवर reinforced with steels because in the presence of water lime reacts with steel reinforcement। ठीक है जी। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी या फिर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, आपने आरसीसी के बारे में पढ़ा कि आरसीसी होता क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आरसीसी जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, या फिर हमारे पास टॉपिक आ सकता है यूजेस ऑफ आरसीसी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ आरसीसी। तो आरसीसी being resist to impact comparison tensions, shear and tensile stresses is used in all important engineering work। कहाँ कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका वो है ब्रिजेस, बीम्स जो आपके बनाए जाते हैं, जो आपकी स्लैब्स बनाई जाती हैं, जो आपके वेयर हाउसेज होते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स, जो ओवरहेड वाटर टैंक्स आपके बनाए जाते हैं, जो फाउंडेशंस बड़ी बड़ी जो आपकी फाउंडेशंस होती हैं, रोड्स जो आपके होते हैं, जो आपके रेलवे स्लीपर्स एक्सेट्रा, ये सब आरसीसी कहाँ यूज़ किया जाता है, इन सब की कंस्ट्रक्शंस में, इनको बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट जो है आपका वो है एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी। एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी का मतलब कि इसकी जो आरसीसी जो आपका है उसकी विशेषताएं या फिर उसके लाभ, एडवांटेजेस जो है आपका लाभ आप बोल सकते हो वो क्या क्या है। तो फर्स्ट जो आपका है, इट कैन बी easily handled and therefore can be molded to any shape and size। इसका मतलब हम इसको जो आरसीसी है इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इजीली हैंडल्ड। इसलिए देयरफॉर, इस वजह से इसको किसी भी शेप और साइज में क्या कर सकता है, माउंटेड मीन्स होता है ढाल देना, उसको ढाला जा सकता है। इट कैन बी माउंटेड टू एनी शेप एंड साइज। नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है आपका, इट कैन बी ईजली मेड बिकॉज द मटीरियल आर ईजली अवेलेबल। ऑब्वियस है, ईजली मेड क्यों, बिकॉज मटीरियल जो है ईजिली अवेलेबल है। आपको जो है रॉ मटेरियल जो होता है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस वजह से एक एडवांटेज बन जाता है आपका आरसीसी का। इट इज़ ड्यूरेबल बिकॉज इट कैन रेजिस्ट एक्शंस ऑफ वेदरिंग एजेंसी। इट इज़ फायर रेजिस्टेंस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फायर रेजिस्टेंट। इट इम्पेरिजल्स ऑफ मिक्स मॉइस्चर। एंड नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है आपका, combination of concrete and steel make it economical because comparison is taken by concrete and tensions by steel। सिंपल सी बात है, combination of concrete steel make it economical। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, चिपर होना। ठीक है जी। इट हेल्प्स इन मेकिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है, जो आपका एचसीसी जो है उसकी एक सबसे बहुत बड़ी एडवांटेज जो बन जाती है वो ये बन जाती है कि ये जो होते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, जैसे आपने सुना होगा आजकल जो भूचाल्स वगैरह आते रहते हैं, ऑब्वियस है जब हमारी स्ट्रक्चर जो होगा वही कमज़ोर होगा तो वो नहीं झेल पाएगा उनको। तो जो आरसीसी एक बहुत बड़ी एडवांटेज बन जाता है कि आपके जो अर्थक्वेक होते हैं उनको झेल सकता है। इट इज़ इकोनॉमिकली इन दी लॉन्ग रन एज दी मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो। ऑब्वियस है जब आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा
तो आरसीसी की एडवांटेज यही कहती है कि जब आपका स्ट्रक्चर मजबूत है तो एक इकोनॉमिकल हमें उसकी जो मेंटेनेंस जो होगी वो कम करनी पड़ेगी, या एज़ कम्पेयर जो अगर हम कमज़ोर चीज़ बनाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी ऑब्वियस है ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आरसीसी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है जिससे की वजह से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए बन जाता है, मतलब लंबे समय के लिए चलता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी बनाओ तो वो लंबे समय के लिए चलती है, तो आरसीसी भी हमारा एक एडवांटेज बन जाता है इस वजह से। तो नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, आप थोड़ी लिमिटेशन की जगह अगर आपका एग्ज़ाम में आ जाता है कि डिसएडवांटेज क्या है, तो आप डिसएडवांटेज भी उसका आपका यही आएगा, या फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं तो आपकी लिमिटेशंस भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो उसमें आपने फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है आपका, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ आरसीसी वर्क इज़ वेरी हाई। इनिशियल कॉस्ट का मतलब होता है शुरुआत, जब हम शुरुआत करते हैं जो आरसीसी वर्क से जब हम शुरुआत करते हैं, जो शुरुआत होती है उसकी वो थोड़ी क्या होती है, कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज दे रिक्वायर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ स्टील एंड टिम्बर्स वर्क फ्रॉम वर्क एंड सम ऑफ देम गेट परमानेंटली डैमेज। जैसे मैंने पहले ही कहा था इनिशियल कॉस्ट आरसीसी वर्क इज़ वेरी हाई, इनिशियली कॉस्ट हाई है तो ऑब्वियस है हम क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील ऑब्वियस है तो उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। फर्स्ट आपका लिमिटेशन सेकंड वाले से आप समझ सकते हो, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से आप समझ सकते हो। दे रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील्स एंड टिम्बर फ्रॉम वर्क एंड सम गेट परमानेंटली डैमेज। और जैसे हम काम करते हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो, तो जैसे आपका स्टील है या फिर आपका टिम्बर्स जो यूज़ होता है वो क्या हो जाता है परमानेंटली मतलब परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो एक लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज होती है आपकी आरसीसी की। नेक्स्ट इज द डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज इंक्रीज। डेड लोड जो होता है स्ट्रक्चर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है। एंड द लास्ट लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन। स्किल्ड लेबर का मतलब है कि हमें हुनर, जिनके पास एक हुनर लेबर जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि जिसको यही नहीं पता कि मिक्सिंग कितनी करनी है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो आप उनको नहीं लगा सकते हो। अगर आपको एक अच्छा आरसीसी कंस्ट्रक्शन करवाना है, एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है या अच्छा रोड्स बनाने हैं, तो वहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये थे आपके लिमिटेशंस ऑफ आरसीसी। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक आरसीसी और कंक्रीट। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका जो आपने अभी तैयार करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।